Hello students, in the previous video we have discussed up to the composition of microbes. In this video, in the part 2, we have talked about the types of microbes. Types of microbes. I already told you there are 4 types of microbes: bacteria, protozoa, fungi, virus. There is one more, that is the algae, but in your books only there are 4 types of microbes are given. Now, first of all, we start with bacteria. Yes, in the previous video I told you that microbes are present everywhere. So this is also a microbe. So bacteria is also present almost everywhere. In the air, present in air, water, soil, animals, etc. Means almost everywhere. सब जगह पाए जाते हैं bacteria. Okay. First of all, we take the examples. Examples of bacteria. Bacillus. Bacillus is the example of bacteria. And flagella. Examples are not given in your book, but these are the examples of bacteria. Now, bacteria are of 3 types. Shapes of bacteria. Shapes of bacteria. 3 shapes of bacteria. First one is round shaped, then rod shaped, and the last one is spiral shaped. So, जो बैक्टीरिया हैं वो 3 तरह की शेप में होते हैं: राउंड शेप, रॉड शेप, and the spiral shape. Now let's see how they look like. Round. First of all, we take the round shape. Round. नाम से ही पता चल रहा है. Shaped bacteria. Like this. Small rounds की तरह. कुछ colonies में भी होते हैं. Colonies means groups में साथ साथ जुड़े हुए. कुछ बैक्टीरिया कॉलोनीज में होते हैं, ग्रुप्स में जुड़े हुए. रॉड शेप, रॉड होती है ना ब्राउन कलर की, रॉड शेप बैक्टीरिया. वैसे रॉड की शेप में होते हैं. ऐसे रॉड शेप में होते हैं. ठीक है. और लास्ट वन इज स्पाइरल शेप्ड. स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया. ये देखो ऐसे किसी भी शेप के हो सकते हैं. ये छोटे छोटे स्पाइरल शेप के भी हो सकते हैं, किसी भी स्पाइरल शेप में हो सकते हैं. सांप पुंगलों की तरह ना, सांप छोटे छोटे जो अर्थवॉर्म्स वगैरह की तरह में या स्पाइरल्स की तरह में किसी भी शेप में. सो these are all the bacteria, and these causes some diseases. Bacteria causes
diseases like typhoid, cholera, pneumonia, इसको हम पढ़ने के लिए अगर हमने लिखना है तो पिनोमोनिया लिखेंगे, बट लर्न करने के लिए अगर हमने लर्न करना है तो, लेकिन मोस्ट इसको जो स्पेल किया जाता है, इसको जो प्रोनाउंसिएशन है इसको हम बोलते हैं निमोनिया. सो these diseases are caused due to bacteria. Now take the next one, that is the protozoa. These bacteria, I already told you, they are also one cell animals. Now the next one is protozoa. These protozoa are also very small animals. These are also one cell animals. Protozoa are one cell animals and one cell animals, very small. Now examples are amoeba and paramecium. These are the examples of protozoa. These are one cell animals and are the examples of protozoa. These present inside the body of other living organisms, protozoa, and they cause present inside the body of other living organisms and causes diseases like dysentery, malaria, और when they bite they enters. और ये कैसे जाते हैं? जब ये बाइट करते हैं या कुछ गंदा खाने की वजह से, गंदे पानी की वजह से ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और जिससे कि हमें डायसेंट्री और मलेरिया टाइप की ये जो डिजीजेस होती हैं. द नेक्स्ट टाइप ऑफ माइक्रोब्स इज वायरसेस. Virus. These are smaller than bacteria. Smaller than bacteria. मैंने आपको बताया था कि वायरस जो होते हैं, these are very smaller than bacteria, and they to see them special microscopes are used. Special microscopes are used to see these viruses. Viruses are very small. To see these viruses, we need special microscope. Special तरह के microscope की जरूरत पड़ती है इनको देखने के लिए. And the examples of viruses are, और एक बात और, ये जो viruses हैं, ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद ही एक्ट करते हैं. दे आर लिविंग आफ्टर एंटरिंग द बॉडी ऑफ द ह्यूमन और द एनिमल्स. They became alive only after entering the human body
the living, only after entering the living organisms. Living organisms. ये तभी एक्ट अलाइव होते हैं जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करते हैं, उसके बावजूद ये आगे एक्ट करना शुरू करते हैं. सो द एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस आर सबसे पहले तो एक आजकल जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल, बहुत कॉमन वायरस चल रहा है, दैट इज द कोरोना वायरस, अ डेडली वायरस, कोरोना वायरस. फर्स्ट एग्जाम्पल वी टेक द कोरोना वायरस एंड द बैक्टीरियोफेज. ये कुछ नाम है वायरसेस के. सो कोरोना वायरस, यू ऑलरेडी नो कि आजकल कितना पैंडेमिक चल रहा है इसका. उसी की वजह से ऐसी सारी डेडली, एक से दूसरे पर्सन को कितनी जल्दी ये मल्टीप्लाई होता है. वायरस ऐसा डेडली वायरस है जो कि कोरोना वायरस, जो कि बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है. मतलब एक से दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, ऐसे बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है, जिससे कि ये बॉडी में जाते ही एकदम से ही इफेक्ट करता है. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट and wash your hands regularly after every meals or after going to after coming back from the washrooms. So, and in between also you wash your hands, use sanitizer, and also cover your face with the mask. Now, virus causes, मैंने आपको अभी बताया कि these are very dangerous, so these causes many diseases. इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं. So virus causes the diseases like common cold, सिंपल हमें कोल्ड, कफ और कोल्ड होता है, फीवर होता है, ये सब चीजें भी वायरल होती हैं. वायरल फीवर बोल देते हैं ना कि वायरल फीवर है ना. तो ये सारी चीजें भी अगर इसको प्रॉपर केयर ना की जाए तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, डेडली ले लेती हैं रूप. ठीक है. सो वी शुड टेक केयर ऑफ इट. वायरसेस कॉजेज डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर एटसेट्रा. बहुत सारी मीजल्स हैं, ऐसे कुछ भी हो सकती हैं. डेंगू, पीछे कुछ महीनों पहले डेंगू का बहुत चला था. दैट वाज आल्सो वायरस. ठीक है. इट इज अ डेडली आल्सो. डेंगू जिसमें कि सेल एकदम से लॉस होते हैं, है ना. तो ये सब तो आपको पता ही है, डेंगू वगैरह सबको पता होता है. ठीक है. सो दीज ऑल आर वायरसेस. नाउ आवर लास्ट वन इज fungi. Last type of microbe is fungi. Fungi. These are non-green plants. These are non-green plants. Fungi भी वन सेल्ड भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी. ठीक है. सो दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. मेक देयर ओन फूड. They get their food from dead and decaying matter. From dead and decaying matter. Plants and animals भी कह सकते हैं हम. dead and decaying matter कुछ भी. dead and decaying plants and animals.
There is one activity, आपने कभी देखा होगा, when you put a bread and keep a moist bread, ठीक है ना, moist bread को आप ऐसे ही बाहर इतने warm damp place पे ऐसे ही बाहर रख दो कुछ दिन, एक दो दिन के लिए आप ऐसी पड़ी रहने दो प्लेट में डाल के, तो आप क्या देखते हैं कि उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की कुछ आ गया है. दैट इज कॉल्ड फंजाई. सो यू कैन ऑल्सो डू दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ दैट. की एक्टिविटी आप कर सकते हो कि आपने अगर देखना है कि फंजाई कैसे होती हैं, तो कोई भी ब्रेड लो. एक और एक्टिविटी आप कर सकते हो कि ये कुछ भी तरह का प्लास्टिक बैग लो, उसमें कुछ ऑरेंजेस के पीसेस डालो, ब्रेड डालो, उसे थोड़ा हल्का सा पानी डालो और उस बैग को, प्लास्टिक बैग को बंद करके, सील करके कुछ टाइम के लिए रख दो. आफ्टर 2 or 3 days you see, 2 days you see कि ब्रेड रोट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, and it smells very foul. But don't open the bread, don't open the plastic bag. See from the outside only. तो आपको क्या नजर आएगा कि ब्रेड के ऊपर फंगस टाइप, ग्रीन कलर का कुछ आ गया. एल्गी भी बोल सकते हैं हम उसे, फंगस, मोस्टली फंगस बोलते हैं, ठीक है. तो वो उस पे आ गया, जिससे पता चलेगा कि ब्रेड खराब हो गई है. तो ये माइक्रोब्स हैं जो वार्म एंड डैम्प प्लेसेस पे ऐसे आ जाते हैं अगर केयर ना की जाए. तो ऐसी फंगी जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट है, वो अपना खाना ही किससे लेता है, डेड एंड डिकेइंग जो रॉटिंग मटेरियल होता है उससे लेता है. सो एग्जांपल्स ऑफ फंगाई, एग्जाम्पल्स ऑफ फंगी. सो मैंने आपको पहले बता दिया कि ब्रेड वाली एग्जाम्पल बताई. एग्जाम्पल भी इसकी वही है, ब्रेड माउल्ड, ब्रेड माउल्ड एक्सेट्रा. अब फंगी दो तरह की होती है, वन सेल और मल्टी सेल. वन सेल होती है यीस्ट. यीस्ट इज अ वन celled fungi, and mushrooms are multi celled fungi. mushrooms क्या है, multi celled fungi. So students, these are the types of microbes. So watch this video and do learn these.